topic that we are talking about today is pursue consecration and holiness. तो आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पवित्रता के पीछे चलना चाहिए. I just want to touch on this word pursue. We're just coming out of the season of Valentine's. और मैं ये जो शब्द है किसी चीज के पीछे चलना, मैं उसका अर्थ समझाना चाहता हूँ. अभी हम लोग वैलेंटाइंस डे मना के निकले हैं. And during Valentine's, either somebody was pursuing you or you were pursuing someone. और वैलेंटाइंस के दौर में शायद आप किसी का पीछा कर रहे हो या कोई आपका पीछा कर रहा हो. And when you're pursuing, when a boy is pursuing a girl, और जब एक लड़का एक लड़की का दिल जीतने की कोशिश करता है, that's the one. You do certain things, you make certain preparations, right? तो आप कुछ प्लान बनाएंगे, आप कुछ खास करेंगे. The same way when you're pursuing a career in certain area, there's things you must put in place. और उसी प्रकार जब आप अपना दिल किसी काम पे लगाते हैं कि आपको ये काम करने की इच्छा है, तो आप उसके लिए भी कुछ चीजें आपको सही करनी पड़ती हैं. And so we want to look at this, what we need to put in place to pursue consecration and holiness. तो आज हम देखेंगे हमें किन किन चीजों को सही स्थान देना है अपनी जिंदगी में, अगर हम पवित्रता का सच में पूरे दिल से पीछा करना चाहते हैं. So the topic of today is pursue consecration and holiness. तो आज का जो वचन है वो हम बात करेंगे कि हम किस तरह पवित्रता के पीछा कर सकते हैं कि वो हमें हासिल हो, और अपने आप को प्रभु के लिए कैसे अलग कर सकते हैं. But I am making the title, the message, do you want to see God? पर जो आज का वचन है उसमें ये प्रश्न मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ कि क्या आप प्रभु को देखना चाहते हैं. We can talk to each other in church, isn't it? हम एक दूसरे से कलीसिया में बात कर सकते हैं. Can you just turn to your neighbor and ask him, do you want to see God? तो आप अपने पड़ोसी से पूछिए, क्या आप प्रभु को देखना चाहते हैं. Now, that neighbor is still waking up, is not yet ready. Ask the other neighbor, तो do वो you वाला पड़ोसी want to अभी see शायद God? जगह नहीं है, तो आप दूसरी तरफ मुड़ के पूछिए, क्या आप प्रभु को देखना चाहते हैं. We'll take our reading from Hebrews chapter 12 तो हम हिब्रूज 12 से पढ़ेंगे and verse 14. और 14 पद. I can see that in this congregation we have both young and old. और यहाँ हमारे इस कलीसिया में बुजुर्ग भी हैं और जवान भी हैं. So I will read from versions that apply to the old and some to the young. तो मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा बाइबल के हिस्से जो बुजुर्ग के लिए लागू होगा और कुछ जो जवानों के लिए लागू होगा. Some of the older generation like the amplified version. और जो कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बाइबल का जो एम्पलीफाइड वर्जन है वो अच्छा लगता है. And this is how it reads. और वहाँ ये लिखा है, Continually pursue peace with everyone. हर समय शांति के पीछे हर समय हर एक के साथ शांति रखने के लिए काम करो. And the sanctification without which no one will ever see God. और सैंक्टिफिकेशन जिसके बिना कोई कभी प्रभु को नहीं देखेगा. और वो शुद्धता जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देखेगा. Okay, I struggle with KJV. The thee, thy, thou confuses me. So we will go to the New King James Version for still, the boomers and, that category of people. So it says this way, pursue peace with all people. और यहाँ लिखा है शांति की इच्छा हर एक के साथ रखो. And holiness, without which no one can see God. और पवित्रता जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता. For the millennials, we'll read from NIV. It says, make every effort to live in peace with everyone. हर कोशिश करो कि तुम हर एक के साथ शांति में जी सको. And to be holy. और पवित्र बनने की. Without holiness, no one can see God. बिना पवित्रता के कोई प्रभु को नहीं देख सकता. Now this is for Gen Z, Gen Alpha, Gen X, the message. We like the message version, no?
So work at getting along with each other and with God. कोशिश करो कि तुम्हारी हर एक के साथ बने और प्रभु के साथ भी बने। Otherwise, you will never get so much as a glimpse of God. नहीं तो तुम प्रभु पे थोड़ी सी नजर भी नहीं डाल पाओगे। Now the title of the sermon seems a bit far-fetched. और शायद आप सोचें कि ये जो सवाल है जिसका आज हम जवाब ढूंढ रहे हैं कि उसका कैसे जवाब मिल सकता है। Seems not possible. कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। It seems pretentious. कि लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही फेंक रहा हूँ। So Pastor, how can we see God? You might be asking. तो शायद आप सोच रहे हो कि पास्टर हम कैसे प्रभु को देख सकते हैं? We all know that God's invisible, no? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु नजर नहीं आता। Maybe it's because I'm a Moirika. I can see God. Moira. शायद आपको लगे कि क्योंकि मैं मोयरा से हूँ मैं प्रभु को देख सकता हूँ। So they say that Moira are wise people. क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। Some say wise, others say otherwise. कोई बोलते हैं बुद्धिमान है और कोई बोलते हैं Moira is so pissed. They're trying to tell us we can see God. आप सोचे कि ये कौन है जो हमसे बोल रहा है कि हम प्रभु को देख सकते हैं? But can you tell me for a moment, church, who is Jesus? पर क्या ये आप एक पल के लिए मुझे ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है? Wasn't he fully God? वो पूरी रीति से प्रभु थे, but also fully man. पर इंसान भी हैं। Was he visible? क्या वो नजर आते थे? Did people see him? क्या लोग उन्हें देख सके? It's true, yes, and we too can see him in this sense. और हाँ लोगों ने यीशु मसीह को देखा और हम भी उन्हें देख सकते हैं। We can see his wonder-working power through the Holy Spirit in our lives. और यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देते हैं और उस पवित्र आत्मा का महान कार्य हम अपनी जिंदगी में देख सकते We हैं। can see his miracles and healing and restoration. और जो चमत्कार है और जो चीजें उजड़ गई हैं उनको वापस बनाना उसमें हम उनको देख सकते हैं। I was so touched when Pastor you sent me the testimony about your journeying together with Isabel. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ जब मैंने वो टेस्टिमनी देखा पास्टर और इज़ाबेल के वो उन्होंने जिंदगी कैसे साथ में काटी है And उसके the बारे में। amazing testimony of her healing from cancer. और कितनी महान रीति से प्रभु ने इज़ाबेल को कैंसर से चंगाई दी। I have a dad who is recovering from cancer. मेरे पिता अभी कैंसर से वो भी अभी बेहतर हो रहे हैं। But there's a big difference between healing from cancer और बहुत ही बड़ा फर्क है चंगाई पाने में and recovering from cancer. और बेहतर होने में। Recovering from cancer is the hand of the doctor. और जब कैंसर से अभी आप बेहतर होने लगे हैं उसका मतलब है कि डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है। And that is natural. और वो तो होता है कि डॉक्टर्स वो शारीरिक चंगाई है। But when we're talking about a healing, पर जब हम चंगाई की बात we're करते talking हैं about the hand of God. तो हम प्रभु के हाथ का कार्य देखते And we're हैं talking about the supernatural. और तब हम आत्मिक चीजों की बात कर रहे हैं। So we too want to see God show up miraculously in our lives. और हम भी चाहते हैं कि प्रभु के चमत्कार, प्रभु आश्चर्य के काम हमारी जिंदगी में करें। At least I do. मैं तो ये इच्छा रखता हूँ। I don't know about you. मुझे नहीं पता अगर आप भी ये इच्छा रखते हैं। But we all know that we will one day pass on from this world and we will see God face to beautiful face. और हम जानते हैं कि एक दिन हम इस दुनिया से, हम सब जो यहाँ हैं, हम इस दुनिया से मर के दूसरी दुनिया में जाएंगे और हम प्रभु को देखेंगे। But until that day, पर उस दिन तक the author of Hebrews says, हिब्रूज जिसने लिखा है उसमें ये कहा है, make every effort to pursue consecration or holiness. कि तुम हर काम करो कि तुम पवित्र बन सको। Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrews chapter 12 verse 14. और यहाँ लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता
कि खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, and to live at peace with everyone so that we will one day see God, isn't it? और हर एक के साथ मेल मिलाप रखो कि हम एक दिन प्रभु को देखेंगे। Hence the title of the message today, do you want to see God? और इसीलिए आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या आप प्रभु को देखना चाहते हैं? So we want to see miracles, signs and wonders. We want to see Jesus showing up mightily in our lives, is it not? क्या हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु के महान काम और उसके आश्चर्यचकित काम सब देखें और हम प्रभु को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखें? क्या आप ये चाहते हैं? How many would like for God to perform miracles through them? और कितने में आप लोग में से कितने लोग ये इच्छा रखते हैं कि प्रभु आपके द्वारा चमत्कार दिखाए? I think that's every child of God's deepest desire, that God would work through them. और मुझे लगता है ये प्रभु के हर बच्चे की ख्वाहिश होगी कि प्रभु उनके द्वारा काम करे। And just like Moses, who was on Mount Sinai, he got to see the back of God when he received the Ten Commandments. We also can see God show up in our lives. और जिस प्रकार मूसा ने प्रभु को पीछे से देखा जब उसने उससे 10 नियम थे वो पाए, उसी प्रकार हम भी प्रभु को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। I personally became a pastor because I saw God's hand of miracles and healing in my life. और मैं पास्टर इसलिए बना क्योंकि मैंने प्रभु का चमत्कार और चंगाई अपनी जिंदगी में देखी। I was a heavy alcoholic, और मैं बहुत पीता था, as every good Goan is, जैसे हर अच्छा गोवन होता है, but also smoking a lot of cigarettes और मैं बहुत सिगरेट भी पीता था and lots of challenges. और मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ थी। But when I came to know about this Jesus, और जब मैंने यीशु मसीह के बारे में a जाना, Muslim friend was challenging me. मेरा एक जो मुस्लिम दोस्त था वो मुझे ये चुनौती दे रहा He था। told me, you're a failed Christian. उसने मुझे बोला कि तुम तो किसी काम के क्रिश्चियन नहीं हो। I said, I know. मैंने बोला हाँ मुझे पता है। He said, but it's Ramadan now. पर उसने बोला नहीं अभी रमजान चल रहा I है। said, I know. मैंने बोला हाँ मुझे पता है। So what do you want me to do? तो तुम क्या चाहते हो मैं करूँ? He said, you pray to your Jesus. उसने बोला तुम अपने यीशु से प्रार्थना करो, Fast with me. मेरे साथ तुम उपवास रखो, Read your Bible for all I can. तुम चाहते हो तुम अपना वचन भी पढ़ो, And if your God cannot help you, और अगर तुम्हारा प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता cross over, become a Muslim. तो तुम मुस्लिम बन जाओ। I will call you Nabil. हम तुमको नबील You बुलाएंगे can marry my cousin. और तुम मेरी कजिन से शादी कर लेना। All I heard is that you can marry my cousin. मुझे सिर्फ यही सुनाई दिया कि तुम मेरी Everything कजिन से शादी कर everything else, selective hearing of men, we didn't hear anything. लेना। बाकी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। But I prayed and I fasted and I asked Jesus, take away these things from my life. पर मैंने प्रार्थना करी, मैंने उपवास रखा और मैंने प्रभु से बोला प्रभु मेरी जिंदगी से ये चीजें ले जा। If you're truly the Son of God, I asked. अगर तू सच में प्रभु का बेटा है, I just need proof. मुझे दिखा दे, Take away this rubbish. मेरी जिंदगी के कचरे को तू हटा दे। Number one, I'll believe. और पहली चीज है कि मैं विश्वास करूंगा, Number two, I'll give up my career. और दूसरी चीज है कि जो मेरा काम है वो मैं छोड़ दूंगा। Around that time, there was a Gujarati lady sharing the gospel with me. उस समय पर एक मेरी जिंदगी में एक गुजराती औरत थी जो मुझसे वचन बांट रही She थी। told me she had left Ganesh and Hanuman and all these other gods. उसने बोला कि उसने ये सब भगवानों को छोड़ दिया था I said, he's following the Lord Jesus Christ only. और वो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। She's the one who introduced me to this missionary going to northern parts of Kenya in the deserts. और उसने मुझे एक ये जो व्यक्ति था जो अफ्रीका में प्रभु का वचन लेके जा रहा था रेगिस्तानों में, उसने मुझे उसके बारे में बताया। I served there for about almost a year. और मैंने वहाँ तकरीबन 1 साल के लिए काम But किया। at the 6-month period, I was bitten by a very small poisonous snake. पर 6 महीने बीतने तक मुझे एक छोटे से जहरीले सांप ने काट दिया था। And we had buried 3 warriors, tall, towering giants, men of the soil, locals. और हमने 3 अच्छे बड़े आदमियों को वहाँ दफनाना पड़ा था। And I had no physical advantage over them. और
मैं उनके मुताबिक में कुछ नहीं था, उनके मुकाबले में। Now I went to the Roman Catholic dispensary. They told me, very sorry, we don't have the medicine. They finished. तो मैंने वहाँ जाके अस्पताल में पूछा दवाई के लिए, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास दवाई नहीं है, खत्म हो गई है। We can give you painkillers and antihistamine. हम आपको आपकी एलर्जी कम करने के लिए और दर्द कम करने के लिए दवाई दे सकते हैं। And as I was walking out of the dispensary, और जैसे मैं वहाँ से निकल के जा रहा था, the doctor turned to the nurse and said, he's not going to make it. डॉक्टर ने मुड़ के वहाँ जो नर्स थी उससे कहा इसका गुजारा नहीं होगा। She said in their language, और उसने अपनी भाषा में कहा, but I understood. पर मैं समझ गया। I left there because I was 800 kilometers from Nairobi, my home. मैं वहाँ से निकला और मैं उस समय अपने घर नायरोबी से 800 किलोमीटर दूर था। The roads were rocks and stones. There was no electricity. There was no even cell phone coverage to call my parents to say, I love you. I'm coming back in a box. और जो सड़कें थे वो भी सब पत्थर से भरी हुई थी और मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने माँ बाप को कॉल करके बोल सकूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं अब आप मुझको कफन में देखेंगे। I cried out to the Lord and He gave me Mark 16 verse 17 and 18 in my ear, almost audibly. मैंने प्रभु को पुकारा, उसको चीख लगाई और प्रभु की आवाज़ मुझे सुनाई दी और उसने मार्कुस 16, 17, 18 से मुझसे बात करी। And it says, and these signs shall follow those who believe. और उसमें लिखा है कि ये चिन्ह जो मुझ में विश्वास रखते हैं उनको नजर आएंगे। In my name they will drive out evil spirits or demons. मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। They will speak in new tongues or languages. नई जुबानों में बात करेंगे। They will take up snakes in their hands. वो अपने हाथों में सांप को उठाएंगे। And when they drink of any deadly poison, it will not harm them at all. और चाहे वो जहर को पी क्यों ना ले, उससे उनको कोई चोट नहीं पहुंचेगी। They will place their hands on the sick people and they will get well. वे बीमारों पे अपने हाथ रखेंगे और वो चंगाई पाएंगे। That is the latter part of the Great Commission according to Mark. और जो मार्क की इंजील है उसमें ये जो प्रभु ने हमें जो महान काम दिया है ये उसका अंत का हिस्सा है। So the Great Commission tells us to go. तो जो प्रभु ने जो हमें महान काम दिया है उसमें लिखा है कि जाओ। And the latter part says that and these signs will follow who? और ये जो चिन्ह है वो किसके पीछे चलेंगे? Will follow the pastors only? क्या सिर्फ पास्टर को ये Will चिन्ह follow only the मिलेंगे? missionaries? या वो जो प्रभु का वचन लेके दूर दूर जगहों पे Will follow जाते the हैं? evangelists? No. या सिर्फ वही जो प्रभु का वचन बांटते हैं? No. नहीं। It says, and these signs shall follow all those who believe. पर लिखा है वचन में कि ये जो चिन्ह है वो हर एक की जिंदगी में देखने को मिलेंगे जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। But God has been challenging me, church, of late. पर प्रभु मुझको आजकल ये मुझसे बात कर रहा है And I'm asking myself this question. और मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूँ Why don't we see these signs and miracles and wonders among the believers these days? कि आजकल हमें ये जो चमत्कार हैं वो हमें विश्वासियों के बीच में क्यों नहीं नजर Why आते? don't we see the mighty outstretched hand of God manifested in power like we used to in the Gospels and the book of Acts? How come we don't see that today? कि प्रभु का जो महान हाथ है वो हमको जैसे हम जब एक्ट्स की किताब पढ़ते हैं हम देखते हैं प्रभु ने कैसे महान महान काम किए लोगों के जरिए से, आज हमें वो काम होते हुए क्यों नहीं नजर आते? But church, this is the conviction that the Lord gave me in my heart. पर प्रभु ने मेरे दिल में मुझसे ये बात करी, ये अगवाही करी That we have observed a decline in God's miracle signs and wonders. कि हमको प्रभु के चमत्कार और जो चिन्ह हैं वो हमें आज कम होते हुए नजर आ रहे हैं। But this is not because God is less powerful today than He was 2000 years ago. पर ये इसलिए कम नहीं हुआ है क्योंकि प्रभु तब बहुत शक्तिशाली था और अब उसकी शक्ति कम हो गई है। But I believe it is because we as His church are less holy than we were. मुझे लगता है ये इसलिए आज हमें नजर नहीं आता क्योंकि हम जिस प्रकार उस समय लोग पवित्रता के पीछे चल रहे थे हम उस तरह से पवित्रता की खोज में नहीं है। There is a decline in the levels of holiness as the body of Christ. तो जो प्रभु का जो देह है हम उतने पवित्र नहीं रहे, हम पवित्रता में घट गए हैं। We are not making every effort to live in peace with each other. हम
हमारे बस की जो हर चीज़ जो हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ शांति में रहने के लिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम जो भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं। There's always quarreling and fighting and gossiping within the church. कलीसिया के अंदर भी आप देखेंगे लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की बातें दूसरों से कर रहे हैं। And because of this lack of holiness, और क्योंकि कलीसिया में पवित्रता नहीं है, we are seeing less and less of God in our lives as His followers today. हम चाहे प्रभु के पीछे चल क्यों ना रहे हो, हम उसकी शक्ति अपनी जिंदगी में, उसके चमत्कार अपनी जिंदगी में और कम होते हुए पा रहे हैं। So what must we do, Pastor? You must be asking. तो शायद आप पूछ रहे हो, अच्छा पास्टर अब मैं क्या करूं? How do we become holy? मैं पवित्र कैसे बनूं? We want to see God in our lives. हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्रभु को देखूं। I believe the answer to this question is और मैं मानता हूं इस सवाल का जवाब है in the understanding of what it means to be consecrated. ये समझने में कि हमें कि अपने आप को अलग रखने का अर्थ क्या है। To be consecrated means to be set apart. इसका अर्थ है कि हम अलग कर दिए गए हैं, To be put aside for holy use. कि हमें अलग कर दिया है सिर्फ पवित्र कार्यों के लिए, For God's purpose, use and service. कि प्रभु की जो इच्छा है उसके लिए अलग कर दिया है। प्रभु हमें जैसे इस्तेमाल करना चाहे उसके लिए अलग किया है और प्रभु की सेवा करने के लिए अलग किया है। Have you ever done that before? क्या आपने ऐसा कभी पहले किया है? It's one thing to become a follower of Jesus Christ and to ask Him into your heart as your personal Lord and Savior. ये एक बात है कि ठीक है हम प्रभु को के पीछे चले, हम प्रभु से बोले कि हमारे दिल में आ जाइए, हमारी जिंदगी का राजा बन जाइए। But asking Him to set you apart for the work of the ministry. पर ये अलग बात है कि आप प्रभु से बोले कि प्रभु आप मुझे अलग कर दीजिए अपनी सेवकाई के लिए। This is a process almost close to ordination of a minister. तो ये जैसे अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे पास्टर बनना है और फिर उसके लिए जो चर्च में सर्विस होती है उसको पास्टर के दर्जे में देखने के लिए ये उस तरीके की चीज है। In our church, you have to serve for 3 years, then you go through some vetting process through the elders and other pastors see yes, indeed he is called. Then you get set apart or ordained or consecrated. तो हमारी कलीसिया में 3 साल तक तुमको सेवकाई करनी होनी चाहिए। उसके बाद जो चर्च में जो और पास्टर हैं, बुजुर्ग हैं, वो देखेंगे कि क्या ये इंसान पास्टर बनने के लिए तैयार है और सिर्फ उसी के बाद वो पास्टर बन सकता है। At the ordination service, they will usually pour oil on the head of the pastor. और उस दिन जो सभा होती है, उस दिन जो व्यक्ति पास्टर बनने जा रहा होता है उसके सर पे हम तेल उंडेलते The हैं। oil which is symbolic, just as oil separates from water. और ये तेल उस चीज का चिन्ह है, एक चिन्ह के समान है, जैसे तेल पानी से अलग हो जाता है। So it symbolizes that this one is being set apart for God's work and use. उसी प्रकार से ये चिन्ह है कि ये जो व्यक्ति है जो आज पास्टर बन रहा है उसको अलग किया गया है प्रभु के कार्यों के लिए। Now in the Old Testament, it was only kings and priests who were anointed with oil. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि सिर्फ जो लोग राजा थे और याजक थे, सिर्फ उन्हीं पे तेल डाला जाता था। But in the New Testament, there's a different kind of, there's a change. पर नए नियम में हम देखते हैं एक बदलाव। In 1 Peter 2:9 it says, पहले पत्रस 2:9 में लिखा है, but you are a chosen people. पर तुम एक चुने हुए लोग हो। Watch this. A royal priesthood. A royal priesthood. एक याजक हो, मतलब जो राजाओं की सेवा करते हैं। A holy nation. Sure. All right. Let's, if you're looking for it, it's 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2. कोई ये खोल के पढ़ेगा प्लीज हिंदी में, 1 पीटर 2:9। We'll read it together. We'll wait for you.
पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Thank you. So it was only in the Old Testament that it was priests and kings that were anointed. But here we are reading that you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his holy light. Church, I want to tell you that consecration is not just for a few super spiritual elite. और मैं आज ये आप सबसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु सिर्फ कुछ खास लोगों को नहीं चुनता अपनी सेवकाई के लिए। It is not only for people that have gone through Bible college who have studied theology. ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल स्कूल से पढ़ के निकले हैं। The Bible talks not of a priesthood of some believers. और वचन सिर्फ ऐसा नहीं बोलती कि जो कुछ लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं सिर्फ वही याजक बनेंगे। Scripture talks about a priesthood of all believers. बल्कि सब लोग जो प्रभु में विश्वास रखते हैं हम सब याजक हैं। And that's why the gospel, it said that portion in Scripture, the Bible says, these signs shall follow all those who believe. और इसीलिए वचन में लिखा है कि ये चिन्ह उन सब की जिंदगी में नजर आएंगे जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। Personally, I want to be holy. और व्यक्तिगत रीति से ये मेरी इच्छा है कि मैं पवित्र बनूं। I want to be separated. और मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग कर दिया जाए। I deeply desire in my heart of hearts to be specifically designated for God's purpose. और ये मेरे दिल की गहराई से इच्छा है कि जो प्रभु के कार्य हैं मैं उसके लिए इस्तेमाल हूँ। But no one can force this on you. पर ये जो इच्छा है ये कोई आप पे ढकेल नहीं सकता। No one can coerce you to pursue holiness or consecration. कोई आपसे आगे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम पवित्र बनो, तुम अपने आप को प्रभु के काम के लिए अलग करो। But this is the decision that you must make for yourself. ये निर्णय हम में से हर एक को अपने लिए लेना है। If you want to see God show up in your life mightily. अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु को अपनी जिंदगी में महान कार्य, महान रीति से देखें। If you want to see signs, miracles and wonders in this day and age, it will cost you to be separated and holy. अगर आप इस समय पर इस हमारी जिंदगी में अपनी जिंदगी में प्रभु के जो महान काम है, चिन्ह है, आप उनको होते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपको भी मतलब बिना कुछ करे आप प्रभु को नहीं देख पाएंगे। The question is, do you really want to see God? प्रभु को देखने के लिए आपको भी दाम चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं सच में प्रभु को देखना चाहता हूँ? Let's look for a moment at the life of Joshua as he picks up after Moses, the great man of God, dies. आइए हम थोड़ा जोशुआ की जिंदगी पे नजर डालें। जब मूसा के मरने के बाद जोशुआ ने जो उसका काम था वो उसने आगे बढ़ाया था। He has very big shoes to fill. और मूसा ने कितना वो उसकी कदमों में चलना आसान काम नहीं था। This was the man who orchestrated the 10 plagues in Egypt. और मूसा वो व्यक्ति था जब वो इजिप्ट गया था, वो जो 10 प्लेग्स जो आई थी उसके जरिए से आई थी। The same Moses who with his rod and by God's wisdom parted the Red Sea so that Israel walked on dry land and Pharaoh's soldiers were drowned. और मूसा वही व्यक्ति था जिसके जरिए से मूसा ने वो जो रेड सी थी उसको 2 भाग में किया था कि प्रभु के लोग जा पाए और जो फेरो के लोग हैं वो डूब जाए उसमें। Water from a rock, manna from heaven, and even quails in the wilderness. और पत्थर से पानी और आसमान से खाना, ये सब हमने मूसा से होते हुए देखा था। How was this young man Joshua ever going to measure up to Moses? और ये जो जवान लड़का जोशुआ था वो उसके कदमों में कैसे चल पाता, उसके जैसा कभी कैसा हो पाता? Joshua chapter 3 verse 5 gives us the answer. और जोशुआ 3:5 में हम उत्तर पाते हैं। Joshua told the people,
जोशुआ ने लोगों से कहा, consecrate yourselves, अपने आप को अलग करो, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे बीच में महान काम करेगा। Joshua takes a step of faith in the obedience that the scripture says, और वो एक विश्वास में एक कदम उठाता and है he does what God tells him to do. और प्रभु जो उसे करने के लिए कहता है वो करता And है। then in verse 7 it says this, और फिर 7वें पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उससे कहा, and the Lord said to Joshua, और प्रभु ने जोशुआ से कहा, today, आज, tell your neighbor, today, आप अपने पड़ोसी से बोलिए, आज I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, आज से मैं तुझे पूरे इज़राइल की आंखों में बढ़ाऊंगा, so that they may know that I am with you as I was with Moses. ताकि वो जाने कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी हूँ। What a promise. ये कैसा कितना अच्छा वादा है How प्रभु। many of you would want and desire for God to begin to lift you before your peers? और आप में से कितने लोग ये ख्वाहिश रखेंगे कि प्रभु आपको आपके दोस्तों के सामने उठाए, To exalt you among your spheres of influence. कि जहाँ भी आप जहाँ भी आप किसी चीज का हिस्सा हैं उसमें प्रभु आपको उठाए, So that people may know that God is with you. और प्रभु आपको इसलिए उठाए कि लोग जाने कि आपके साथ प्रभु हैं। Imagine for a moment with me, एक पल के लिए आप ये सोचिए, in front of your family members, आपके घर वालों के सामने, in front of your colleagues, आप जिनके साथ काम करते हैं उनके सामने, in front of people that have looked down on you and despised you and disrespected you. उन लोगों के सामने जो आपकी बेइज्जती करते हैं, जो आपको नीचा समझते हैं। Imagine what it would look like आप सोचिए कैसा होगा if God began to exalt you in their presence. अगर उनकी मौजूदगी में प्रभु आपको उठाने लगे। How many would want that? आप में से कितने लोग ये इच्छा रखते No, हैं? seriously, how many would नहीं, want सच that? में। By show of hands. आपने हाथ उठाइए अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा देखें। But when you ask how many want to be holy, oh, not me, not me. पर अगर मैं पूछूं कि कितने लोग पवित्र होना चाहते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, मैं नहीं। How many want to see God? We all want to see God. प्रभु को कितने लोग देखना चाहते हैं? हम सब प्रभु को देखना But it's चाहते going to हैं, cost you. पर आपको भी दाम चुकाना पड़ेगा, And holiness is the price to pay. और वो दाम है पवित्रता। If you want to see God, you first must begin to pursue consecration. तो अगर आप सच में प्रभु को देखना चाहते हैं तो पहली चीज जो हमें करनी है, हमें अपने आप को प्रभु के लिए अलग करना You है। must live a set apart life और of holiness. आपकी जिंदगी दुनिया की जिंदगी की तरह नहीं हो सकती, पर आपको अपने आप को पवित्रता के लिए अलग करना है। The beautiful song, The Refiner's Fire by Brian Dougherty, sums it up so very well. और ये एक इंग्लिश का गाना है, रिफाइनर्स फायर, जो इसको कितने अच्छे से समझाता है। I'm going to attempt to sing, and I hope your ears don't bleed. और मैं ये आपके लिए गाऊंगा और मैं आशा रखती हूँ कि आपके कानों से खून ना बहने लगे। Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. You know the chorus? Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. और इस गाने के जो शब्द हैं, वो गाने में ये व्यक्ति प्रभु से मांग रहा है कि आप मेरे दिल को मुझको शुद्ध कर दीजिए। जिस प्रकार हम देखेंगे
सोना या चांदी जैसे उसे आग से निकल के वो शुद्ध होता है, उसी प्रकार ये प्रभु से आस रख रहा है कि आप मुझे शुद्ध करिए और मुझे अपने काम के लिए अलग करिए, और कि उसकी दिल की ये एक इच्छा है कि वो प्रभु के लिए अलग हो। May that be your prayer. और मैं आशा करता हूँ कि यही हम सब की प्रार्थना हो। I know that is my prayer. मैं जानता हूँ कि ये मेरे दिल की प्रार्थना I है। want to be holy. मैं पवित्र बनना चाहता I हूँ, want to be set apart. मैं प्रभु के लिए अलग होना चाहता हूँ। But church, what does a set apart life look like? पर हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है What does it even mean? कि इसका मतलब क्या है कि हम अलग हो जाएं? What is the pursuit of holiness and how can we begin this journey today together? ये जो पवित्रता है उसके पीछे चलने का अर्थ क्या है, और हम ये सब इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? What does it look like for us as a body of Christ to be holy? हम जो प्रभु का देह है यहाँ शामिल सब इकट्ठे, हम सब पवित्र कैसे बन सकते हैं? And the beautiful answer to that question is right here on the wall. और इसका सुंदर जवाब यहाँ दीवार पर है। We talked about Joshua earlier in the scriptures. हमने पहले जोशुआ के बारे में अभी बात करी So थी, Joshua 24:14 to 15 says, और जोशुआ 24:15 में लिखा है Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. कि प्रभु का भय कर और उसकी सेवा कर ईमानदारी के साथ। Throw away your gods of your ancestors that you worship beyond the Euphrates River and in Egypt, और जो तेरे पूर्वजों के जो भगवान थे उन सबको फेंक दे and serve the Lord. और प्रभु की सेवा कर। But if serving the Lord seems undesirable to you, पर अगर आज तुझे प्रभु की सेवा नहीं करनी, then choose this day whom you will serve. तो अपने लिए आज तुम खुद चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। Whether the gods of your ancestors that you serve beyond the Euphrates River and the gods of the Amorites in this land in which you are living, क्या उन भगवानों की जिनकी तुम पूजा करते थे, या वो भगवान जिनकी आज भी इस यहाँ पूजा होती है? let's say this part together. But as for me and my house, पर मेरे और मेरे घराने के लिए, but as for me and my house, पर मैं और मेरा घराना we will serve the Lord. हम प्रभु की सेवा करेंगे। there's something simply beautiful about serving the Lord with your household. और एक बहुत ही सुंदर चीज है अपने घराने के साथ प्रभु की सेवा करना। It's not about you resigning your job and going to Bible college. मैं ये नहीं कह रहा कि अपना काम छोड़ के बाइबल कॉलेज चले जाओ, It's not about becoming a full-time minister. No. या फुल टाइम पास्टर या प्रभु की सेवकाई में सारे समय के लिए अपने आप को अलग I करना। love it that in this church we believe in bivocational ministry. मुझे ये बहुत पसंद है कि इस कलीसिया में हम दूसरा काम भी करते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं। Our pastor sets a perfect example. और जो हमारे पास्टर हैं वो एकदम अच्छे उदाहरण And हैं on Sunday and through the week, he's the pastor and preaches on the message. कि संडे को और हफ्ते में वो पास्टर हैं और वचन बांटते हैं, Monday to Saturday, his work is his worship. और मंडे से सैटरडे तक जो उनका काम है वो भी उनके लिए वो भी प्रभु के लिए कर रहे हैं। Pastor Kishore picked us up at the airport the other day. पास्टर किशोर ने हमको एयरपोर्ट से उठाया, And when he gets into that cab turns into a chapel. और जब वो गाड़ी में होते हैं वो गाड़ी उनके लिए कलीसिया बन जाती His है, passengers, that's his congregation. और जो गाड़ी में उनके साथ बैठे हैं वो उस कलीसिया के हिस्सा हैं। It's about knowing whom you belong to और हमको जानना है कि हम किसके हैं and living a holy life. और पवित्र जीवन जीना। As a lawyer, as a doctor, as an engineer, making every effort to live at peace with all men and by being consecrated. तो आपका जो भी काम हो, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पर उस जहाँ प्रभु ने आपको रखा है वहाँ आप पवित्रता की जिंदगी जी सकते हैं और हर एक के साथ शांतिपूर्वक जिंदगी जी सकते We हैं। see examples from the scripture. Acts chapter 13 verse 2, the Bible says, और हम बाइबल में भी अलग-अलग उदाहरण देखते हैं। ये एक्ट्स 13:2 में लिखा है, Whilst they were worshipping the Lord and fasting, जब वो प्रभु की आराधना कर रहे थे और उपवास रख रहे थे, the Holy Spirit said, "Set apart for me, consecrate for me Barnabas and Saul for the work which I have called them." पवित्र आत्मा ने कहा कि
बारनबास और सॉल को जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है उन्हें अलग कर दो। And didn't Barnabas and Saul do such amazing works for the kingdom of God? और क्या बारनबास और सॉल ने इतना महान काम प्रभु की लिए नहीं किया? Signs, miracles and wonders in their lives. no? और इनकी जिंदगी के जरिए से हमने कितने चिन्ह और चमत्कार देखे। What about Daniel, who resolved in his heart not to defile himself with the royal food and the wine? और हम डैनियल की जिंदगी में भी देख सकते हैं, उसने अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दिया। वो जो वहाँ जो अच्छा खाना था और पीने के लिए था उसको उसने नहीं लिया। All the Goan will like, oh no, not the wine. He's talking about the wine. और शायद यहाँ सब बहुत बोलेंगे, हाय रे डैनियल ने वाइन नहीं पी, अब क्या मुझे भी। But didn't God lift him up above his peers? पर क्या आपने नहीं देखा कि प्रभु ने उसको जो उसके दोस्त थे उनसे ऊपर उठाया? Daniel 6:3. Then this Daniel was distinguished above the presidents and the satraps because an excellent spirit was inside him. और हम देखते हैं डैनियल 6:3 में कि डैनियल को वो जो वहाँ जो प्रेसिडेंट थे और वहाँ के जो लोगों जिनके पास अलग-अलग अधिकारी थे, प्रभु ने उनको उससे उनके ऊपर उठाया और उसमें जो आत्मा थी वो बहुत ही अच्छा काम करने की आत्मा थी। और जो राजा था उसने सोचा कि मैं उसको पूरे राज्य के ऊपर स्थापित कर दूं। Yeah, the king set him over all the realms. So, what about King David? Imperfect as he was, a murderer, an adulterer, but still God called him a man after my own heart. There was a pursuit for holiness, and if you don't believe me, check Psalm 51. और हम देखते हैं जो दाऊद राजा की जिंदगी में भी उसने भी किसी की जान ली थी, किसी और की बीवी के साथ वो सोया था, पर तभी भी प्रभु उसे कहता है कि ये आदमी मेरे अपने दिल के पीछे है। और किंग राजा दाऊद की जिंदगी में भी उसके पास ये इतनी ख्वाहिश थी कि वो पवित्रता के पीछे चले। 2 Samuel 5:12 records. और दूसरा सैमुएल 5:12 में लिखा है, Then David knew the Lord had established him as king over all of Israel and had exalted his kingdom for the sake of his people, Israel. कि दाऊद जानता था कि प्रभु ने उसको राजा बनाया है पूरे इज़राइल के ऊपर और प्रभु ने उसके राज्य को बढ़ोतरी दी थी अपने नाम के लिए। By the way, let me just make a disclaimer right now. Consecration is not about upward mobility, promotion and visibility. No. तो अपने आप को अलग कर देना का मतलब ये नहीं है कि अब आप बस ऊपर ही ऊपर जाएंगे और आपको काम में बढ़ाव मिलेगा और सब लोग आपको देखेंगे। Pursuing consecration was about serving God and God's people. अपने आप को अलग करने का मतलब है कि आप प्रभु की सेवा और प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे। If you look at the examples of the people we have just talked about, the core reason of consecration and holiness was to serve God and to serve people. अभी जो हमने सब उदाहरण देखे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इन लोगों की जो दिल की इच्छा थी वो थी कि वो प्रभु की सेवा करें और प्रभु की लोगों की सेवा करें। Consecration is not an easy thing. और अपने आप को अलग करना आसान चीज नहीं है। It requires a supporting and family environment like Joshua's. उसके लिए अगर एक परिवार जो आपके साथ खड़ा हो वो बहुत जरूरी है। It requires a heart of repentance like David's. और जैसे दाऊद का दिल जो पश्चाताप का दिल था वो वैसा दिल रखना बहुत जरूरी It है। requires an excellent spirit like Daniel's. और जैसे डैनियल की इच्छा थी कि वो हर काम बहुत अच्छे से करे, हमें भी वैसी इच्छा होनी And चाहिए। it requires a posture of prayer and fasting and worship like in the case of Paul and और Barnabas. जिस प्रकार हमने पौल और बरनबास की जिंदगी में देखा, हमको भी प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में जुटे रहना चाहिए। But above all, if you want to see God and live a holy life, पर अगर आप सच में प्रभु को देखना चाहते हैं और पवित्र जिंदगी जीना चाहते हैं, you will have to work hard, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी continuously, हर समय। making every effort और आप जितना भी कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा to pursue living at peace with all men.
इस कोशिश में कि आप हर व्यक्ति के साथ शांति से जी सकें, शांति में जी सकें। And for that you will have to take up your cross daily. और ये उसके लिए आपको रोज अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। Just like Jesus our Lord and Savior did, crucifying your flesh daily over and over again. जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया था, हमको रोज रोज अपने आप को मारना पड़ेगा। अपनी जो गलत इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को मार के यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। A consecrated life is a life of sacrifice. और ऐसा जीवन जो अलग कर दिया है वो बलिदान का जीवन है। Back to our scripture from today, Hebrews 12, 1 to 3. और हमने जो आज पढ़ा था इब्रानियों 12, 1 से 3। Look at each other for a moment. आप एक दूसरे पे नजर डालिए। Just look at each other. Yeah, those ones that just look at each other for a moment. Hebrews 12, 1 to 3. Can you see those faces? Can you see those people looking at you? It says in Hebrews, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. For the joy that was set before him, the scripture says, he endured the cross, scorning its shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary, you will not lose heart. I want to bring it to a close, so that we can have some time of ministration and prayer together with our pastor. Do you want to see God? You're going to have to work at it. You're going to have to make some sacrifices. Are you? Yes, I'm okay. She's waiting. इब्रानियों 12, 12 और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा को कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। I was a bit worried when you went quiet. I have heard of members of the congregation falling asleep. I've never heard of the translator falling asleep. I said, I'm that boring. Oh my, sorry. तो अभी मैं यहाँ हम अंत पे आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम कुछ समय बिताएं प्रार्थना में। Yeah, we want to bring it to a close. We want to bring it to a close. You want to see God, you have to make some sacrifices in this life. तो अगर आप प्रभु को देखना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ बलिदान देने पड़ेंगे। Certain things, certain behaviors, certain idols in your life must be laid down today. तो आपकी जिंदगी में कुछ चीजें, आपका कुछ व्यवहार, आपने जो कुछ चीजें अपने लिए एक मूर्ति के समान बना ली हैं, उन सबको आपको आज नीचे रखना पड़ेगा। Today you will need to live it. You have to. Today we need to come back to the cross in repentance, like David, and ask Him to create in you a new heart. तो जैसे हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं, आज हमारे पास भी मौका है कि हम प्रभु के पास आए, उनके क्रूस के सामने आए और पश्चाताप करें और प्रभु से बोलें कि प्रभु तू मुझे एक नया दिल दे दे। To pursue consecration and holiness, you will need to forgive some people, and from some people you will need to seek forgiveness from them. तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रभु के लिए अलग कर लें और आप पवित्र बने, तो आपको भी कुछ लोगों को माफ करना पड़ेगा और कुछ लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। To pursue consecration and righteousness and holiness, we need to get rid of bitterness, malice and rage.
तो और अगर आप पवित्रता की और अपने आप को अलग रखने की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके अंदर जो भी क्रोध है, कड़वाहट है, गुस्सा है, उस सब को आपको हटाना पड़ेगा। If we want to be holy, अगर आप पवित्र बनना चाहते we will हैं need then to become excellent. Excellence must become a way of life for us. कि हम जो भी करें हमको बहुत अच्छे से करना चाहिए। Mediocrity, procrastination, half-hearted efforts must have no place in our lives as believers. तो अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं आपको व्यक्ति होना चाहिए जो अगर कुछ काम है उस काम को वो टाल दे या अच्छे से ना करे। हम ऐसा नहीं कर सकते। When we pursue a girl or a career, we go all out, don't we? जब आप किसी लड़की को अपना दिल दे दें और आप चाहते हैं कि वो लड़की भी आपकी हो जाए तो आप उसके लिए क्या करने को तैयार नहीं रहेंगे। या अगर आपको कोई काम चाहते हैं कि आप कोई काम कर पाएं, आप उसके लिए भी कितनी मेहनत करेंगे। So why don't we go all out today as a church as we pursue God's holiness in our lives? तो जिस प्रकार हम किसी लड़की के लिए या काम के लिए अपना पूरे दिल और जान से काम करेंगे, उसी प्रकार हम प्रभु के पीछे क्यों ना पूरे दिल और जान से चलें। How can you serve God if we are not consecrated to Him? और हम प्रभु की सेवकाई कैसे कर सकते हैं अगर हमने अपने आप को उसके काम के लिए अलग ना किया हो। We need to be hearing His voice. जरूरी है कि हम प्रभु की आवाज सुने। So do we want to be lifted up before all men? Yes. तो पर क्या हम चाहते हैं कि प्रभु हमको बाकी आदमियों के सामने उठाए? हाँ। Do we want to see God? Yes. क्या हम प्रभु को देखना चाहते हैं? उसका जवाब भी We है हाँ। want signs, miracles and wonders today in our lives as believers? Yes. क्या हम प्रभु के चमत्कार देखना चाहते हैं आज हम विश्वासियों की जिंदगी में? उसके लिए भी हम बोलते हैं हाँ। But today God is calling us पर आज प्रभु हमें बुला रहा as है this church called by His name इस कलीसिया को जो उसके नाम से बुलाई गई है to humble ourselves as a church. कि हम अपने आप को अधीन करें, For it's written, those who humble themselves will be exalted. क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने आप को अधीन करेंगे प्रभु उनको उठाएगा। But those who exalt themselves will be humbled. पर वो जो अपने आप को उठाते हैं प्रभु उनको नीचा कर देगा। You know, my brother, my sister, मेरे भाई बहन आप जानते हैं God has been calling you to be set apart, to be consecrated, holy for His purpose. प्रभु आपको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसके काम के लिए अलग हो जाओ। But you've been in a place and a position and a posture of hardness and resistance. पर आपने अपने दिल को कठोर किया हुआ है और आप प्रभु की आवाज सुनने को तैयार नहीं हैं। I want to take a moment, want you to take a moment. मैं चाहता हूँ कि अभी इस समय आप एक पल लें। As the worship team comes up and Pastor is getting ready to pray for us. जैसे वर्शिप टीम सामने आती है और पास्टर तैयार हो रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना Just करने के लिए। begin to evaluate your lives in the light of God's word today. अपनी जिंदगी को प्रभु के वचन के आईने से देखिए How are you doing in these few areas of your life? कि अपनी जिंदगी के इन जगहों में आप कैसा कर रहे हैं। Are you living at peace with all men? क्या आप सब व्यक्तियों के साथ शांति में जी रहे हैं? Is there hidden sin in your personal walk with God? क्या आपकी जिंदगी में कोई गुप्त पाप है? How is your prayer life doing? आपकी प्रार्थना की जीवन कैसी है? Are you talking to God regularly? क्या आप प्रभु से लगातार प्रार्थना करते हैं? Are you taking some time in dedicated fasting to hear God's voice? क्या आप समय निकाल रहे हैं उपवास रख के प्रभु की आवाज सुनने के लिए? Are your efforts at home and at work less than excellent? क्या जो आपका घर पे काम है, काम पे जो आप काम कर रहे हैं, क्या वो बहुत ही अच्छा है या उससे कम है? When was the last time you confessed your shortcomings before the Lord? ये आखिरी बार ये कब हुआ था कि आपने प्रभु के सामने जो आपकी कमियां हैं उनको कबूल किया? This is an altar call that I will be answering. और ये एक ऐसा बुलावा है जो मैं भी जिसका जवाब दे रहा हूँ Because I want to see God. क्योंकि मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ। I want to see Him use me. मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरा इस्तेमाल करे। I want to see signs, miracles and wonders performed in my life. और मैं प्रभु के चमत्कार अपनी जिंदगी में होते हुए Not देखना for चाहता me. हूँ, मेरे लिए नहीं।
not for my fame, मेरी शान के लिए नहीं, but so that those that have not believed पर इसलिए कि जो लोग अभी तक जिन्होंने विश्वास नहीं will किया come है to the saving knowledge of Jesus Christ वो प्रभु में विश्वास लाएंगे and His love and mercy that He offered us at the cross of Calvary. और वो प्यार और दया जो क्रूस पे जो प्रभु हमको देते हैं। So this is an altar call that I will be answering myself. तो ये जो बुलावा है इसका जवाब मैं खुद भी दे रहा हूँ With as many of you who also want to see God. और आप जितने आप सबों के साथ जो भी प्रभु को देखना चाहते And if हैं you are feeling that God is calling you to be set apart, और अगर आपको लग रहा है कि प्रभु आपको अलग अपने आप को अलग करने के लिए बुला रहे हैं you know that God is calling you for a consecrated life. और अगर आपको लग रहा है कि प्रभु आपको बुला रहे हैं कि आप अपना जिंदगी अलग करें उनके लिए It's a call to live in peace with men. और ये एक ऐसा बुलावा है कि आप लोगों के साथ शांति में जिए It's a call to a life of repentance. और एक ऐसे जीवन के लिए बुलावा है पश्चाताप जिसमें हमें नजर It's आए a call to a life of excellence. और ये एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जिसमें आप बहुत ही अच्छा काम करें उसके लिए बुलावा है It's a call to life of worship, prayer, and fasting. और ये एक आराधना प्रार्थना और उपवास की जिंदगी के लिए मैं आपको बुलावा दे रहा हूँ It's a call to see signs, miracles, and wonders be performed in your life. और ये ऐसा बुलावा है कि आप अपनी जिंदगी में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह और आश्चर्यचकित काम देखें It is your call. और ये बुलावा आज आपको भी आपके पास आया है It is your call. और प्रभु आपको भी बुला रहा है Will you answer that call today? और क्या जो आपकी जो बुलाहट है क्या आप उसका जवाब देंगे Will you answer the call to be set apart? प्रभु जो आपको बुला रहा है अपने आप को उसके लिए अलग करने के लिए क्या आप जवाब देंगे This is your call today. आज प्रभु आपको बुला रहा है In Jesus' name. यीशु मसीह